اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بھی آیا اور سب نے سنا. سیکرٹری جنرل OIC نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور جو OIC کا انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کے نمائندہ نے اپنی رپورٹ اور اپنی اسیسمنٹ پیش کی. مجھے موقع ملا اور میں نے ممبران کو بریف کیا جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے اور میں نے ان کی خدمت میں بتایا کہ کس طرح جو آخری اجلاس تھا جو 25 ستمبر کو نیو یارک میں ہوا تھا اس کے بعد صورتحال میں کس طرح یکسر تبدیلی آئی ہے اور صورتحال کس طرح مزید بگڑی ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں جو میری معلومات تھیں ان کی خدمت میں نے پیش کی. میں نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بزور بازو وہ جو حریت کا جذبہ ہے جو آزادی کی لہر ہے ہندوتوا سوچ سے اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو اسپرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی اس کو دبایا جا سکے اور ان کی ول کو توڑا جا سکے. لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں. میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ پچھلے 10 ماہ میں جو کووڈ-19 سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی. لاک ڈاؤن تھا, ملٹری سیج تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے آنے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز میں نرمی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا. میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جا رہی تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی ہرگز نہیں ہوئی. ہسپتالوں تک رسائی آج بھی نہیں ہے, ادویات آج بھی نہیں ہے اور جو کورونا سے متاثر ہیں وہ تڑپ رہی ہیں, ان کی نگہداشت مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی. میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح حریت لیڈرشپ کو سینئر لیڈرشپ کو نوجوانوں کے علاوہ کس طرح پابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہ سب جیلوں میں ہیں, نظر بند ہیں, ہاؤس اریسٹ میں ہیں. سید علی گیلانی کو ہاؤس اریسٹ میں 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن ہے آج مقبوضہ کشمیر. تو اس صورتحال سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا. کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھیں میں نے کانٹیکٹ گروپ سے شیئر کی اور زمینی حقائق ان کے سامنے رکھے. کس طرح مرد اور خواتین جرنلسٹ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے, کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے اور جو دھمکی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابند سلاسل کیا جاتا ہے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 5 اگست کی جو آبجیکٹو ہے ان کا وہ بڑا واضح تھا اور اس کی میں نے تشریح سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے. ہندوستان نے جو 5 اگست کے جو میجرز لیے اس کے پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناخت مٹ جائے. ہندوستان وہاں ایک ڈیموگرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو
अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, अक्सरियत को अक़लियत में डेमोग्राफिक चेंज से तब्दील कर दिया जाए। किस तरह वो वहाँ के लोगों को न सिर्फ डिसएम्पावर बल्कि डिसइनफ्रेंचाइज करने का उनका एक बड़ा वाज़े प्रोग्राम है। किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जिसको कहते हैं ना, मावराए अदालत हलाकतें वहाँ हो रही हैं। फेक एनकाउंटर्स का मैंने उनके सामने एक नक्शा रखा। मैंने उनको बताया कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के ज़रिए, पेलेट गन्स के ज़रिए किस तरह आम निहत्ते शहरियों को छलनी किया जा रहा है, उनकी आंखों की बिनाई जो है उनसे छीनी जा रही है। मैंने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ की कि इसके पीछे सोच कार फरमा क्या है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को सुबकी हुई है चीन के हाथों। उनको जो उनका चीन और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, जवाज़ देने की कोशिश कर रही हैं किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। और मैंने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है जो वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सीज़ फायर की वायलेशंस का तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि पिछले 20 दिनों में, सिर्फ 20 दिनों में 30 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है। तो दीगर शुरका ने न सिर्फ अपने ख़यालात का इजहार किया, बल्कि कौम को ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने आज जो एक मुत्तफ़िक का एक कम्युनिके जो पास किया है, उसकी चंद मोटे मोटे नुक्ते मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। पहली बात, उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि ये सब हक़ाइक़ दुरुस्त हैं, हम इनसे न सिर्फ इत्तफ़ाक़ करते हैं, हम आज इस इजलास के ज़रिए मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को और निहत्ते लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम ये है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी जद्दोजहद के साथ हैं, और ये स्ट्रगल जो है वो इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। ये हमारा इरादा भी है और ये हमारी दुआ भी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मत भूलिए कि ये मसला कश्मीर उम्मा के लिए इसकी अहमियत क्या है, और इसकी अहमियत से कोई हमारी तवज्जो हटा नहीं सकता। जैसे फ़लस्तीन का मसला है, उसकी अपनी अहमियत है, इसी तरह इसी के फोरम पर कश्मीर के मसले की हमारी नज़र में उतनी ही अहमियत है। उन्होंने ये भी फरमाया कि हम मुस्तरद करते हैं। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने कहा हम मुस्तरद करते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 को उन्होंने मुस्तरद किया। जो डोमिसाइल रूल्स हैं 2020 जिसके ज़रिए डेमोग्राफिक चेंज करने की उनकी कोशिश है, उन्होंने कहा हमारा ये ग्रुप OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप उनको मुस्तरद करता है, और ये OIC के बिहाफ पे आज हिंदुस्तान की इन पॉलिसीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने का इनका मंसूबा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बेपनाह तशवीश है जो सीज़ फायर वायलेशंस का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फिल फौर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो फिल फौर बंद की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री सीज है और इनह्यूमन लॉकडाउन है उसे फिल फौर ख़त्म किया जाए,
ये आज पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप मुत्तफिका तौर पर कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा वो जो काले कवानीन हैं, वो ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, जिसके ज़रिए वो लोगों पर जुल्म बरतते हैं, उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कवानीन जो हैं, उन्होंने ये भी तकाजा किया कि इंटरनेशनल मीडिया को रसाई दी जाए, मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कर सकें और दुनिया को बता सकें कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल क्या है, और अगर वायलेशंस हो रही हैं तो क्यों कर हो रही हैं। उन्होंने हमारा जो एक दरीना हमारी ख्वाहिश थी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में भी इसका तस्करा है कि इस्टेब्लिश किया जाए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो आज कॉन्टैक्ट ग्रुप ने उस पर भी मोहर जब्त की। और उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत काबिल गौर चीज़ है, कि जितनी मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, जब वो हिंदुस्तान से दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, उनके और मामलात हो सकते हैं, तो उन पर ये फ़र्ज़ है, उन पर ये लाजिम है कि वो जो कश्मीर की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की, वो उस मसले को उनके सामने पेश करें, उसको रेज करें, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस नुक्ते को उठाएं। तो ये आज बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, जिनके बारे में मैं कौम को एतमाद में लेना चाहता था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम वज़राए ख़ारजा का और OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर का, जिन्होंने न सिर्फ हमारी दरख्वास्त पर, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक हंगामी इजलास तलब किया, बल्कि एक मुत्तफ़िका कम्युनिके से हिंदुस्तान को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी कोशिशों के बावजूद मुस्लिम उम्मा कश्मीर के बारे में एक राय रखती है। अच्छा शाह साहब, आप समझते हैं कि भारत के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम, एक तरफ़ा इक़दाम हैं, उनके बाद जो OIC ममालिक हैं, कश्मीर के हवाले से उनके किरदार में भी तेज़ी आई है? आप समझते हैं कि पहले की निस्बत उनमें भी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है? देखिए, भारत ने उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि ये इक़दाम आर्जी हैं और हालात मामूल को लौट रहे हैं, लेकिन मैंने उनके सामने जब हक़ाइक़ रखे और उनका शीशा दिखाया, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भारत के इरादे जो हैं वो आर्जी नहीं हैं। वो कश्मीर के लोगों को किसी सूरत उनके हकूक़ और हक़ के ख़ुद इरादियत की जो उनकी ख्वाहिश है उसको परवान नहीं चढ़ने देंगे। और जैसे जैसे उनको ये चीज़ बावर हो रही है कि हालात मामूल तरफ नहीं लौट रहे और इंसानी हकूक़ बतदरीज पामाल हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं समझता हूँ उम्मा में भी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत का जो बयानिया है वो मांग पड़ रहा है। अच्छा, कश्मीर के मसले को 7 दहाइयों से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन अभी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो पहले कभी नहीं हुए, जैसे कि सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए और कश्मीर में जो जिस तरह के हालात हैं, और भी लॉकडाउन चल रहा है इतने अरसे से, 4 महीने होने वाले, तो आप समझते हैं कि भारत को अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर और कोई रास्ता नहीं? देखिए, दुनिया को, भारत को हुआ हो ना हुआ हो, दुनिया को ये एहसास होता चला जा रहा है कि भारत इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुका है। दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पहले पाकिस्तान से पंजा आजमाई थी, आज चीन सरापा एहतजाज है। वो कह रहा है कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तजावुज़ किया है, वो नाजायज़ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं एक डिस्प्यूटेड इलाके में जो काबिल कबूल नहीं है। और फिर आपने देखा कि जो कुछ हुआ, मैं उसकी तफसीलात पे नहीं जाना चाहता, कौम के सामने आ चुका है। आज हिंदुस्तान और भारत की अपोजिशन और मीडिया
सवाल कर रहा है। वो जो जिनके बच्चे वहाँ हलाक हुए जवानों के, उनकी फैमिलीज आज हिंदुस्तान की सरकार से सवाल कर रही हैं कि हमसे हकायक छुपाए न जाएं और हमें असलियत बताई जाए कि हमारा इलाका उनके कब्जे में है, नहीं है, क्या हुआ, पर्दापोशी न की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। आज वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान से हटकर, चीन से हटकर नेपाल आज मुतरिज है। आज दुनिया इस बात को देख रही है, माजी की सरकारों से बरक्स है। और ये हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, क्या बांग्लादेश के लोग उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तो ये अब जो मैसेज दुनिया को जा रहा है कि भारत न सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे मगरिब की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी उनके जो इरादे हैं वो स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहता है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, भारत एलओसी पर मुसलसल सरहदी जो खिलाफ वर्जियाँ वो कर रहा था, अभी इस साल भी 1400 से ज़्यादा मरतबा हो चुकी है। अब चीन के साथ भी पंजा आजमाई कर रहा है। तो ये लगता है कि भारत का जो इरादा है वो यही है कि दूसरे, ऑलरेडी कश्मीर को लिया हुआ है, दूसरे ममालिक की टेरिटरी को अपना हिस्सा बनाना, इसी वजह से भारत के जो हमसाय ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। देखिए अर्ज ये है, भारत की इस हुकूमत की और इस जमात की सोच को समझने की ज़रूरत है, इनकी जहनीत को समझने की ज़रूरत है। इनकी जहनीत है अखंड भारत। अखंड भारत तो पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी लपेट में लेता है। तो ये है उस सोच की तब्दीली। ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये वो नेहरू वाला, वो गांधी वाला, वो सेकुलर भारत नहीं है। ये एक जुनूनी तबका है जो सामने आया है और ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। OIC इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत के बाद वो बात कर रहे थे।